देखो ना सर तो पैसे बनाना पड़ेगा ना। तो ये रूम हीटर है, ये ठंडियों में हम लोगों के लिए गर्मी प्रदान करता है। जैसे कि हम लोग लकड़ी जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उससे धुआं निकलता है। तो ये होता है कि उससे धुआं नहीं निकलेगा, CO2, तो वो हमारे हेल्थ के लिए सही होता है, अच्छा होता है। सही हाइड्रोलिक ब्रिज है, इसमें हम हाइड्रोलिक प्रेशर से ब्रिज ऊपर नीचे करते हैं।
because it removes the waste product from our body. Now I am going to tell you something about the kidney. These areas are known as cortex. These triangular shapes are known as medulla. These areas are known as renal cortex, and this is renal artery. And now I will tell you something about kidney. It is a bean-shaped kidney. The color of kidney is reddish brown. They are two in number. One is right and one is left. The right kidney is situated a little lower because there is a liver present here. And the kidneys, the function of kidneys, she will explain. Now I want to tell you about the function of kidney. There are many functions of kidney. Some of them are like storage of removal of waste product from our body like urea and uric acid. This is ureter, and it is about 20 to 30 centimeter long, and the diameter of this ureter is 3 mm, and this is made up of from 3 layers: fibrous layer, muscular layer, and the inner layer, which is made up of transitional epithelium. And now further about this project, my colleague will tell you. Automatic principle. This is salty water, and the water's density is greater than this object which is poured in it, so that this material is floating on this salty water, and this is pure water. In the when the object is poured in it, the object has sink because the object's density is greater than this water. When rainfall occurs, when rainfall occurs, it collects on the floor of the house and it go for filtration by this pipe. After filtration, it collect in the tank. This is well. And after collection, it used for many purposes such as irrigation, washing, etc. So this is Tyndall effect. This depicts that I will show. If the light, I pass the light through this, then it will see nothing. But if I pass the light through this, then you can see it clearly going through that. So this basically shows scattering of light when passed through a medium with particles. That's it. And what the substance mixing together in pure water, air, soil is called a pollution. It's a water pollution. When we throw dust, particle of paper in a water, it's a water pollution. It's a air pollution when a factory which we burn something materials, it's a air pollution. It's like the example of a field. A field, when we burn up substance, any paper, any kinds of cloth, it's a air pollution. सूर्य की रोशनी से यहाँ से पानी हीट होता है, फिर यहाँ बादल बन जाता है, इस वक्त यहाँ से बारिश होती है। बारिश का जैसे यहाँ से गर्म पानी पड़ा तो यहाँ सूर्य किरणों से भाप भर के उड़ जाएगा, यहाँ बनेगा। पर इसका वायर लगा देंगे, इसका वायर लगा देंगे। हाँ, फिर यहाँ से यहाँ बादल लगे, यहाँ से बारिश होती है। यहाँ बादल बनता, यहाँ पहाड़ रोक लेता भाप को, फिर यहाँ बादल बन जाते, उसमें बारिश होती है। वाटर डालो यार, तो इसमें से आएगा ऐसे। बारिश होती है ऐसे बस, और कुछ नहीं। और यहाँ एक कार है, रिमोट कंट्रोल होगी, इलेक्ट्रिक।
जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल, जैसे अब जो पॉपुलेशन है बढ़ती जा रही है और पानी कम हो रहा है, इसलिए हम जो बारिश का पानी होता है उसे हम एक कलेक्शन टैंक बनाकर उसमें स्टोर कर देंगे। उसके बाद अब अगर थोड़ा बारिश का पानी गंदा है उसे साफ करने के लिए हम एक फिल्ट्रेशन टैंक लगा देंगे, और ये फ्रेश वाटर टैंक, इसमें जो पानी रहेगा वो साफ पानी स्टोर होगा, तो इससे आप नहा सकते हैं, पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं और कई चीज़ों में, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और जैसे कि अब मॉडर्न घरों में, सिटीज़ में आप इसे अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं, और जो ये कलेक्शन टैंक है ये अंडरग्राउंड जाकर जो बारिश का पानी रहेगा वो ज़मीन के थ्रू जाकर उसमें स्टोर होगा। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और आप वाटरिंग कर सकते हैं, प्लांट्स को वाटर कर सकते हैं। This is our project, that is hydraulic rake. It works as a fuel. Actually, in this hydraulic braking system converts the fluid energy into a useful work that uses it as a this work of fluid energy. Actually, the hydraulic braking system converts the energy of fluid into brake, and it follows the Pascal law that states that. It follows the Pascal law that states that when the pressure is applied in an enclosed fluid, then it is transmitted equally in all directions. And it is invented by Matthew Logan in 1980. हमारे घर में पानी रहता है जो वेस्ट जाता है, उसको हम लोग कैसे जो है पौधों के लिए ज़रूरतमंद बना सकते हैं जी। यहाँ से नहीं, जब बारिश होती है या तो कुछ भी होता है तो घर में जो गंदा पानी हो जाता है उसको ये कंटेनर है, मतलब असली में गड्ढा रहता है, तो जो वाटर रहता है इसमें जाता है, फिर ये इसको प्लांट में दे देता है अपने मशीन से। तो जो प्लांट रहता है उसको रिफ्रेश करके स्टेप बाय स्टेप प्लांट को दे देता है, प्लांट उसको ऑब्जर्व करके यूज़ कर लेता है, या तो और कोई वर्क के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। सो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज ए प्रोसेस यूज टू रिमूव द कंटामिनेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इन्फ्लुएंट। Once that returned to the water cycle, the influence creates an acceptable impact on the environment or is used on the other official purposes. All my friends, my name is Lakshara from class 6. Today I am going to tell about solar system. Our solar system consists of 8 planets, and this is the sun. All planets to revolve around it. Our solar system near about 4.6 billion years old. हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह ये है, सबसे छोटा ग्रह ये है। हमारे सौरमंडल में सूरज का चक्कर सब ग्रह लगाते हैं। सूर्य किसका चक्कर लगाता है? सौरमंडल का चक्कर लगाता है। Morning respected sir, my name is Singh Sansekar from class 6. Today I am here to show you air pollution. When you listen the word air pollution, in your mind arising a question that what is air pollution? The unwanted and harmful substances or particles that are added into the air, which is very harmful to the wildlife. It is causes with vehicles exhaust and harmful gases that are involved in the factories and wildfires. If we can't prevent air pollution, it will destroy the wildlife. Thank you. बारे में बताना चाहता हूँ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। मतलब एयर पॉल्यूशन का मतलब वायु प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण किस चीज़ से फैलता है? गाड़ियों के जो धुएं निकलते हैं, खराब गाड़ियों के धुएं निकलते हैं, और फैक्ट्री में बहुत ही आधुनिक परमाणु टाइप के बम बनाए जाते हैं, उनमें से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं उनकी वजह से हमारा जो ओजोन लेयर है उसमें डिस्ट्रॉय होने की आशंका बताई जा रही है। और अगर हम लोग एयर पॉल्यूशन को नहीं रोकेंगे तो ये हमारे पूरी सृष्टि को बर्बाद कर देंगे।
बुलेट ट्रेन में पहली बार 1964 में जापान में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब ने इसे इंडिया में लॉन्च करने के लिए 2028 डेट डिसाइड किया है इन अहमदाबाद स्टेट, अहमदाबाद टू मुंबई। इसका काम 2018 में जून से स्टार्ट हुआ और एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा और इसकी लॉन्च डेट 15 अगस्त 2022 मतलब का वर्किंग मॉडल है। इट इज़ हाई क्वालिटी। जब इसमें हम लिक्विड या फिर कोई वाटर नीचे होगा प्रेशर भी बना उसके बाद तो ये है हमारे हाइड्रोलिक ब्रिज है। इसको ऊपर नीचे करके कोई भी मतलब नीचे से ऊपर कार को ले जा सकते हैं, कार हो या सामान हो कुछ भी हो, ये न्यू टेक्नोलॉजी है। What is the difference in 3 glass? So this is the examples of Tyndall effect. इसमें जब हम लाइट डालेंगे तो इसका जो रिएक्शन होगा वो हमें क्लियरली शो होता है। इसको टिंडल इफेक्ट। When a black hole has a small hole in it, the surface passes the hole and the hole will get brightened. जो सन की रेज़ होती है छोटे से होल से पूरे कमरे में फैल सकती है। ये सर इसको टिंडल इफेक्ट। थोड़ा सा जो आपको लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, फ्रेंड्स को भी लगा कि सबसे बात होनी चाहिए। सबसे पहले तो सिर्फ मॉर्निंग में अभी शाम के ऊपर गया था, मतलब मेरे लिए शाम बराबर ही था। जब प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था आई वेंट अप, बट आई वॉज गेटिंग यू डाउन फ्रॉम द पेरेंट्स स्पेशली एंड दे ऑल आर प्रेजेंट। हिंदी में तो सभी को समझ में आए। प्रेजिंग में अच्छी बात ये थी कि एक चीज़ सब बोल रहे थे कि यहाँ पे चीज़ें मिलती नहीं है, मटेरियल जो भी सामग्री आप लगाते हैं मिनिमम यहाँ पे जाने के लिए बस खारी है। यहाँ पे बहुत कम चीज़ें मिलती हैं। दूसरा ऑप्शन बचता है जलालपुर, तीसरा बचता है अकबरपुर। आई नो मैनी स्टूडेंट ने ऑनलाइन करके भी मंगाया था और इट वॉज मच मोर बियॉन्ड एंड बेटर देन माई एक्सपेक्टेशन। ये मेरी सोच से बहुत आगे तक प्रोजेक्ट हो गया है। ना मैंने इतना बड़ा इवेंट एक्सपेक्ट किया था, ना मैंने इतना अच्छा प्रोडक्ट एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, मैं सिटी से हूँ, वहाँ पे मैं अगर आप साइट पे वीडियो देखोगे मैं ये प्राउड से बोल सकता हूँ कि इन्फेंट इंडिया इंटरनेशनल स्कूल का प्रोजेक्ट हमारे मुंबई के हेड ऑफिस से इस साल का बेहतर था। ये मैं प्राउड से बोल सकता हूँ, इसके लिए आपको क्लैपिंग। इसमें किसी भी टीचर का एफर्ट नहीं था, एक टीचर होल हार्टेडली लगे थे, राजीव से। तो आई वांट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राजीव। स्टेटमेंट टीचर साइंटिस्ट क्या क्या आपके लिए कर रहे थे, जस्ट इंकरेजिंग, सेंडिंग मैसेज एंड एवरीथिंग। बहुत अच्छा आपने किया है। ज़्यादा जोश में बोल के फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ इफ थिंग्स विल रिमेन हमारे यहाँ तो दोनों गए थे बच्चे वहाँ पुरस्कृत किए गए थे तमाम। तो इस तरह से हर साल होता है 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये इसी दिसंबर ये हर साल होता है। और उसमें से 100 बच्चे जो चुने जाते हैं, 100 बच्चे पूरे जिले से, पूरे देश से चुने जाते हैं, भारत से।
तो वो लड़के जो है उसी के बाद 2, 3, 4, 5 जो है वैज्ञानिकों का सम्मेलन होता है, उसमें वो बुलाए जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो उससे जो है ये वैज्ञानिक प्रतिभा का निखार होता है। तो हम चाहते हैं कि जो कन्वीनर होगा यहाँ का जिले का, मैं बताऊँगा कौन होगा, तो बाल विज्ञान कांग्रेस में भी वो सब्जेक्ट उसमें मिलता है, उस पर प्रोजेक्ट तैयार करके और रिप्रेजेंट किया जाए। जिले को होता है, इसके बाद फिर अंचल को होता है, फिर इसके बाद स्टेट को होता है, फिर नेशनल। तो हमारी कई बार टीम स्टेट में गई है, तो उस पर भी हम जो है अपना समय भी दे सकते हैं, सहयोग भी दे सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सराहनीय कदम रहा और इससे जो है बच्चों का उत्साह, बच्चों में जो उत्साह था वो देखने लायक था। और उत्साहित होना जो है ये प्रदर्शित करता है कि बच्चे अपने विषय के प्रति जागरूक हैं और ये भविष्य के सब वैज्ञानिक बने। सभी बच्चों के साथ अपने प्रोजेक्ट के प्रति बहुत सचेत रहेंगे। धन्यवाद। हाजी सर। First of all, I want to thank our honorable principal sir who allowed you all to show your skills. I must say, all these things were hidden within your personality, within yourself. Okay, and in the ये भी साइंस का ही एक पार्ट है। इन फिजिक्स यू यूजुअली स्टडी लेटेंट हीट, लेटेंट मीन्स हिडन। तो ये चीज़ें हिडन थी, ये चीज़ें छुपी हुई थी और साइंस एग्जीबिशन के द्वारा by today's contest, by the science exhibition only, we came to know that how much capable, how much enthusiastic, how much curious and how much dynamic and vigorous our students are. Your performance was really beyond our expectations. I want to give you one example. Anam Noor, where are you? She's a math stream student, but what she did splendidly well. She made a project on kidney. Just imagine, being a student of math stream, she worked on biology. Okay, so interest आपकी जो रुचि है वो उसका कोई दायरा नहीं होता, ठीक है ना? If you are good in English literature, then simultaneously you can be good as well in Urdu, Hindi, Farsi, Arabic and all. Same thing she showed. Okay, and all 26 or 27 groups, they were splendid. I don't have adjectives. Seriously, I'm short of adjectives. As principal sir also told, and as our honorable chief guest sir, principal sir, he also told that your performance was magnificent. We don't have words to describe your brilliance. All the best for your future endeavors, and whenever you get another chance to prove your worth, to show your worth in near future, probably in 2022, as principal sir said, just after 6 months or 7 months, whenever we have another science exhibition on the roll, then you will get another chance to show your worth. Then for that, just keep your spirits up and just try to आप बिल्कुल, मैं बोलूँगा कि जो आपके अंदर का साइंटिस्ट है, जो आपके अंदर का एक क्यूरियस बच्चा है, उसको बिल्कुल आप जागा रहने दीजिएगा, ठीक है बच्चों? You all are champions, and we all as a faculty members, we all as infant family, we all are proud of you, we all love you. मैं चाहूँगा कि मार्च के पहले ही हो, एंड आई विल ट्राई कि अगर एवरीथिंग इज नॉर्मल तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कम से कम 5 स्कूल को मैं इन्फेंट में पार्टिसिपेट करवाऊँगा। हम साथ में उनके रहेंगे, हम जीतने के लिए नहीं आएंगे, हम अपने टैलेंट को दिखाने के लिए आएंगे। जीतने के लिए तो हर कोई आता है, अपना टैलेंट दिखाने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। हम ये साबित करेंगे अम्बेडकर नगर में इन्फेंट इंडिया ही अकेला स्कूल है जो अपने टैलेंट पे भरोसा करता है, अपनी जीत पर नहीं, क्योंकि टैलेंट होगा तो जीत झकमार के आपके साथ में चलेगा, ठीक है? तो
सब लोगों का थैंक्स, पेरेंट्स का भी थैंक्स बोलता हूँ। इतना ही आपसे बोल सकता हूँ कि उड़बान कमर क्या डरता है, फिर देख इंसान क्या करता है। ये दुनिया आखिर फानी है, फिर जान भी एक दिन जानी है। जब जान भी एक दिन जानी है तो तुझको क्यों हैरानी है। कड़ाल जो दिल में ठानी है, जब हिम्मत की जौलानी है, तो साइंस के क्या पूरी दुनिया के साइंटिस्ट भी हमारे इन्फेंट के सामने पानी पानी है। मैं आपसे बोलूँगा, मुझे मेरे बारे में लोग जानते हो, मैं थैंक यू नहीं बोलता हूँ, सॉरी बहुत इजीली बोलता हूँ, है ना। मैं थैंक्स नहीं बोल पाता, सॉरी बोलता हूँ। मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा हो गया, मेरी थोड़ी सी रूटीन गड़बड़ हो गई, मैं आपको ऊपर पानी भी नहीं पहुंचा पाया, इसके लिए मैं होल हार्टेडली आपको सॉरी बोलता हूँ। एज अ प्रिंसिपल मुझे बोलने में कुछ भी शर्म नहीं है। मैं 3 बार तक आधा स्टेप गया, वापस आ गया, क्योंकि क्राउड देख के मैं खुद परेशान था कि वहाँ पे मैं पानी ऑफर करूँ, आपको कुछ ऑफर ही नहीं कर सकता था, इतना बुरी पोजीशन थी आपकी। लेकिन आपने बहुत अच्छे से वर्क किया। हम लोग एक छोटी सी गैदरिंग बहुत शॉर्टली करेंगे। प्राइस सबका बहुत अच्छा होगा, सर्टिफिकेट भी बहुत अट्रैक्टिव होगी, बट वी नीड सम टाइम टू मेक ऑल दिस, क्योंकि अभी इतने सारे पौधे, उतने गिफ्ट भी लाने पड़ेंगे, क्योंकि साइंस का गिफ्ट भी साइंस की तरह होना चाहिए ना, हम तो कॉमर्स की तरह लाएंगे नहीं। और थैंक यू वेरी मच। मैं किसी का नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर मैं खड़ा था, वो गर्ल जो थी वो इंग्लिश में बोल रही थी और इमीडिएटली दूसरी लड़की उसको हिंदी में बोल रही थी, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और सारे प्रोजेक्ट यदि मैं बोलता हूँ बियॉन्ड मेरी इमेजिनेशन के बाहर है। उसका एक पॉइंट यही है कि यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है, और मैं यहाँ पे नहीं है। सारे पेरेंट्स को मैं थैंक्स बोलूँगा कि सपोर्ट किया है। आपका पॉइंट वर्थ था, आपका पॉइंट आपने रखा होगा संभाल के। इफ़ यू वांट यू कैन टेक बैक होम ऑल्सो स्लोली एंड ग्रेजुअली, अपने हिसाब से आप प्रिजर्व करके रखेंगे, अच्छे से रखेंगे। इट कैन बी यूज फर्दर, हमसे बेहतर बनाएंगे। और नेक्स्ट टाइम हम जब मैंने इतना बोला था, एक लास्ट सेंटेंस ऐड कर रहा हूँ, मैंने 5 स्कूल को किया और एक हम टीचर्स मिलकर ही कोड बनाएंगे। हम भी हमारे बच्चों से कॉम्पीट करके देखेंगे कि हमारे बच्चों के अंदर मॉडर्न टैलेंट ज़्यादा है या एक्सपीरियंस का टैलेंट ज़्यादा है। एक कॉम्पिटिशन इसका भी करेंगे, एक्सपीरियंस का और मॉडर्नाइजेशन का, देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। जस्ट थैंक यू आप लोगों का।